Hello dear students, you are most welcome to today's e-learning class in this EduSat educational channel. Today we will be continuing with the same topic. मजा आ रहा है ना? Coordination chemistry second part. So before proceeding to discuss in today's important things, let's have a quick look into what we had discussed in the previous class. In previous class, we started with a normal salt, when acid, base, they neutralize each other, the product formed is called a salt. Also, salts are produced by replacing the replaceable hydrogen atoms of acid by suitable metals, ionic, hard, rigid, mostly soluble in water, they can form acidic, basic or neutral solutions. Then we discussed double salt, means these are the molecular solids containing two different solids in equimolar ratio that has identity and properties only in solid state. When they are put in water, they lose their properties and identities, and the salts split into their own ions, and the ions exhibit their own properties, right. Then coordination compounds are complexes, means these are the molecular compounds containing two different substances. They are chemically combined in stoichiometry ratio. That substance has existence both in solid state and in solution state, and the individual substances, they lose their identities and properties. Then we also discussed in all complexes, some metal atoms or ions play very important role in making them. They are called as central metal atom or ion, and usually it may be transition metal or it can be non-transition metal. But thing is that they must be small in size, they must have a high nuclear charge, and they must have availability of a vacant d orbitals. So these are the prime criteria of a metal to be the central metal in making complexes, right. Then we discussed ligands. If central metal is a hero, ligands are heroine. So ligands are the species. Species, they contain or they have capacity to donate at least a pair of electrons to the central metal. So ligands are called as Lewis bases and central atoms are called as Lewis acids. So complex formation is nothing but Lewis acid, Lewis base reaction, right. The ligands are classified on the basis of charge as a negative charge, neutral or positive charge, and on the basis of denticity, means how many donor atoms a ligand has. You can have monodentate, bidentate. Bidentate can be of two types, symmetrical, unsymmetrical, tridentate, polydentate. Then your ambident ligands, flexident ligands, bridging ligands and chelating ligands. शायद ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. आज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट. देखिए वही जो पिछले क्लास में जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं. कुछ कॉमन टर्म्स रह गया था, वहीं से शुरू करते हैं. क्या रह गया था? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर और एंटिटी एंड काउंटर आयन. उसके बाद कॉम्प्लेक्स को हम क्लासिफिकेशन करेंगे आज होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. उसके बाद नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर. बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट. आज ये सारे बात आज के एपिसोड में, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे. आइए शुरू करते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर और जिसको कहते हैं लिगांसी. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेंट्रल मेटल की इंपॉर्टेंट पहचान है. हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इट कैन मेक विथ लिगांड्स. एक ही मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है लिगांड के साथ, मीन्स कितने लिगांड्स चाहिए उसको, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स उसको जरूरी है. उसका पीछे भी एक रीजन है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. मैं अगले एपिसोड में उसको पढ़ाऊंगा. लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नॉट नंबर ऑफ लिगैंड्स. Number of coordinate bonds
formed by the ligands with the central atom in the complex, means how many coordinate bonds the central atom makes with the ligands in the complex. For example, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं एग्जामिनेशन में। देखो, कोबाल्ट En whole 3 plus. So how will you determine the coordination number? देखो, इस coordination number is there is a formula, means number of ligands into its denticity. This is the simplest formula how to calculate the now coordination number. You see here coordination number, ligands are ethylene diamine, so number of ligands is your 3 ethylene diamine, and a denticity, you know, ethylene diamine is a bidentate ligand, symmetrical bidentate ligand. Remember last class में मैंने पढ़ाया था. So coordination number is 6, means the central atom cobalt makes 6 number of coordinate bonds with the surrounding ligands. Number of coordinate bonds is called coordination number. Another is, you see, Mg EDTA, EDTA 2 minus. You see, one EDTA is hexadentate ligand. Hexadentate can make 6 coordinate bonds with the central metal. So number of ligands is 1, but its denticity is 6. So coordination number is 6. Another is CO, En, देखो En, Br, Cl, NH3 whole twice. बोलो. And what is its coordination number? What is its coordination number? You see here En is 1 and its denticity is 2 plus. Bromine, it is bromide, it is another ligand 1, denticity is 1, and it is chloride 1, denticity is 1. Here ammonia is another ligand, neutral ligand. So 2 number of ligands and denticity is 1. So total is 6. ठीक है. In K4 Fe CN whole 6. What is the coordination number of iron? Here similarly you can write here. There are 6 number of cyanidines, so 6 number of ligands is 6, and cyanide is a monodentate ligand. Of course, it is your ambidentate ligand, but it is monodentate. So because it can only make one coordinate bond at a time, so coordination number is 6. In this way, you can calculate. Another is NiCO whole 4. NiCO whole 4. What is the coordination number of nickel? Very simple. Here you have number of ligands is 4, and carbon monoxide or carbonyl is a monodentate ligand. So total number of coordination number is 4. So in this way, you can calculate the coordination number of central metals in ligands, in complexes, right? Another is oxidation number. Very, very important. 99% students are making mistakes. When they are writing the IPC name, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है. सारे चीज ठीक से लिखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर पे ही गलतियां कर देते हैं. So oxidation number, what is oxidation number? It is a net electrical charge carried by the central atom in the complex. Complex के अंदर में सेंट्रल आटम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज है, कितने चार्जेस है. सेंट्रल आटम तो मेटल पॉजिटिव चार्ज ही उसके पास होगा, लेकिन कितने यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज. व्हेन द लिगैंड्स, जब हम लिगैंड को निकालेंगे विथ देयर lone pair of electrons, when ligands are removed with their shared pair of electrons, how many units of a positive charge, what is the net electrical charge that central metal carries with it is called as a oxidation state. Very, very important. Now you calculate the oxidation state here. What is the oxidation number? This is coordination number. Now calculate oxidation number. Suppose if I write here Cl3, what will be the oxidation number of a cobalt? Suppose it is X. Remember using X formula, X, and this ethylene diamine,
and its oxidation number is 0 plus chloride, its oxidation number is -1 whole into 3. There are 3 chloride, total complex is neutral, means total charge is 0. So X equal to +3. So its oxidation number is +3. Here, what is the oxidation number of magnesium? What is oxidation of magnesium? You just calculated magnesium, suppose X, EDTA, it has -4 charge, EDTA -4 charge. So -4 means X -4 is equal to total charge of the complex equal to -2. So X equal to +2. So that means you have to write I, here III. In this way, remember how to calculate the oxidation number. गलतियां कभी नहीं करना, नहीं तो सारे बर्बाद हो जाओगे. You will get 0 mark here. Another is cobalt. You calculate. Suppose X, ethylene diamine is 0, neutral molecule 0, bromide means -1, chloride means -1. Ammonia is neutral molecule का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं. So क्या होगा यहाँ पे देखो X -1 इक्वल टू +1. टोटल चार्ज सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो, जितना होगा इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स +1. सो X इक्वल टू +3. दैट मीन्स इट इज 3. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर हियर फॉर आयरन? जल्दी बोलो, जल्दी करो. सपोज इट X, potassium +1 because it belongs to group 1, alkali metal +1. So what will be the oxidation number? 4 plus X, and here it is -6 because each cyanide has -1 charge, 6 has -6 charge, is equal to 0. So X equal to +2. So it is ferrous, right? Here in nickel, tetracarbonyl nickel 0. Here carbon monoxide is oxidation number is 0. X plus 0 into 4 equal to 0. So X equal to 0. So its oxidation number state is 0. So many times this has been asked in your examinations. So never do mistakes in calculating oxidation number. नहीं तो सारी की सारी मेहनत पानी में जाएगी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जहां पे हीरो हीरोइनी इकट्ठा रहते हैं, किसी की नजर न लागे, ब्रैकेट के अंदर में रहते हैं. मैं तेरा मेटल, तू मेरा लिगांड, ये रहा उनका बीच में रिश्ता. मीन्स द एंटिटी, द रीजन वेयर the metal, central metal is coordinated with the fixed number of ligands. वो ligands परमानेंट हैं, वो लिगांड एक ही लिगांड छोड़ के जा सकता है, कोई दूसरा आ सकता है, लेकिन लिगांड का नंबर फिक्स्ड है. लिगांड मेटल जिस जगह में रहते हैं ना, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नॉर्मली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. और बाहर में जो रहा वो आम आदमी है, ये रहा उनका बेगमी खास, जो आम आदमी गेट के बाहर, उनको कहते हैं काउंटर आयन. उनका काम ऐसा ही है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज को बैलेंस करना है. देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बाहर में 3 क्लोराइड बैठे हुए हैं. अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ 2 बैठते, या एक ही सल्फेट आ जाता. तो उनको कहते हैं काउंटर आयन. द काउंटर आयन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अंदर आना मना है उनको. अगर वो लिगांड होंगे तब अंदर आएंगे, अगर नहीं तो बाहर में बैठ के भजन कीर्तन करो. राइट? तो इधर देखो, ये रहा तुम्हारा सारे के सारे पोटेशियम है. यहाँ पे देखो पोटेशियम, ये रहा तुम्हारा काउंटर आयन. यहाँ काउंटर आयन सिर्फ ही उसका बैलेंस करना है उसका चार्ज को. राइट? ये रहा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन. आई बात समझ में? चलिए, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमोलेप्टिक मीन्स क्या है? होमोलेप्टिक का मतलब क्या? होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ लिगांड्स.
The complexes which are formed by only one type of ligands, जो कॉम्प्लेक्स एक ही टाइप का लिगांड से बना हुआ है वो है होमोलेप्टिक, सिमिलर टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ लिगांड से बना हुआ है। देखो 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 यहाँ एक ही इथिलीन डाइमीन एक ही जैसा है, यहाँ पे EDTA एक ही है, ये रहा सियानाइड 6 सियानाइड, ये भी होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मीन्स दे आर मेड ऑफ अ सिमिलर और आइडेंटिकल लिगांड्स, राइट। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस means the complexes made of only one type of ligands, right? Similarly, the complexes made of different types of ligands, different varieties of ligands, they are called as heteroleptic complexes। बताओ इनमें से कौन है होमोलेप्टिक, कौन है हेटेरोलेप्टिक, आपके सामने में लिखा हुआ है। ये रहा, बोलो ये रहा होमोलेप्टिक, because it contains only one type of ligand, that is carbonyl. This one homoleptic because it contains only one type of ligands, that is cyanide ligands. And here you see ethylene diamine, bromide, chloride, ammonia. There are 4 different types of ligands. They are present in this complex. 4 varieties का ligands है, तो ये तो heteroleptic ही है। सो जैसे हम जितने जितने कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ यू विल सी, यू विल ओनली इंटरेक्ट विथ 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दे मे बी होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट जी होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मीन्स मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर मीन्स जिसी कॉम्प्लेक्स में ओनली वन मेटल, एक ही मेटल का राज चलता है जिसी कॉम्प्लेक्स में। देखो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सारा मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। मोनोन्यूक्लियर मीन्स एक ही न्यूक्लियस है, एक ही राजा है, एक ही शहर है, एक ही सेंट्रल मेटल है, दूसरा नहीं। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, हाँ ये नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जरूरी है, लेकिन यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ आयरन है, निकेल है। दीज आर ऑल मोनोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मीन्स दे कंटेन ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? नेक्स्ट जी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, नाम सुनते हो, जैसा नाम ऐसा काम। पॉलीन्यूक्लियर मीन्स दे कंटेन मोर देन वन सेंट्रल एटम। मोर देन वन सेंट्रल एटम, 2 सेंट्रल एटम कम से कम उसके अंदर में है। तो देखो देखो NH3 होल 5 CrOH, अगेन Cr, NH3 होल 5, ये रहा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर, बाहर में Cl5। अब मुझे बताओ, ये रहा तुम्हारा एक ही मेटल, दूसरा मेटल, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो उनको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर, और हियर यू कैन कॉल इट बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में हमेशा व्हाट इज दिस लिगांड, ये लिगांड को क्या कहेंगे भाई, ये लिगांड को क्या कहेंगे, ये मोनोडेंटेंट, ये भी मोनोडेंटेंट, लेकिन उसको कहेंगे ब्रिजिंग लिगांड्स। ये देखो ब्रिजिंग लिगांड्स, तो मतलब जितने सारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें से तो जरूर ब्रिजिंग लिगांड्स होंगे ही होंगे, होना चाहिए भी। और ये रहा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये रहा तुम्हारा काउंटर आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर हिसाब करो, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, हाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम, ये 5 और ये 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। देखो 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 व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, कैन यू कॉल इट सी, कैन यू कैलकुलेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, x, this is a -1, so this is e, so you calculate 2x -1 plus x, each chlorine has -1 minus 5e equal to 0, that means 2x equal to 6 and x equal to +3, so it has oxidation number +3 and its oxidation number is +3. So this is your polynuclear complex. In this complex, I explained everything, how to calculate coordination number, how to calculate
oxidation number, what is the coordination sphere or entity, and who are counter ions. Right? Now, I think you are all very clear about the fundamental concept. ये सब fundamental concepts है, ठीक है. नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे. नामकरण करेंगे, जैसे कोई बच्चा पैदा होने के बाद उसका नेमिंग करते हैं. हमारे पास जितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं आज उनका नोमेनक्लेचर करेंगे. ऐसे ही नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर known by common names. They are famous in common names, but when the numbers are large, very large, it is not possible to remember or to know each complex by its common name. Therefore, there is a guideline issued by IUPAC system. You know, you are very well acquainted with this name and the naming system under IUPAC guideline. आज मैं नोमेनक्लेचर की तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त तरीके से मैं बताऊंगा. ध्यान से सुनना मेरे बात. IUPAC गाइडलाइन के अनुसार हमको नोमेनक्लेचर करना है IUPAC गाइडलाइन के तहत. सो कॉम्प्लेक्सेस को जब हम नोमेनक्लेचर का नेमिंग करेंगे तो पहले हमको ये मन में ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कितने तरीके होते हैं. देखो, complexes usually come across this type of complexes. और आज भी सीखेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को कैसे हम नेमिंग करेंगे. ठीक है. कॉम्प्लेक्सेस आर you see first simple complex cation plus simple anion. Second, simple cation plus complex anion. उसका कैसे नेमिंग करेंगे. थर्ड, कॉम्प्लेक्स काटायन प्लस कॉम्प्लेक्स आनायन, उसको भी कैसे नेमिंग करेंगे. और फोर्थ, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, उनको भी कैसे नेमिंग करेंगे. So these are the four varieties of complexes. Another is bridging complex, लेकिन वो तुम्हारा सिलेबस से बाहर है. ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ये 5 varieties of complexes. How to do their naming under IUPAC system. देखो, कुछ भी हो, ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारा आयनिकी, ये भी आयनिक हो सकता है, नॉन आयनिक भी हो सकता है. ज्यादातर कॉम्प्लेक्स आयनिक. आप जानते हैं जब कोई कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, NaCl क्या कहते हो नाम, NaCl क्या कहते हो, सोडियम क्लोराइड. कभी सुना है क्लोराइड सोडियम. मिस्टर एंड मिसेस कभी नहीं सुना होगा. मिसेस एंड मिसेस मीन्स सोडियम क्लोराइड मीन्स पहले कटायन उसके बाद आनायन. ये रहा पहला रूल. सारे के सारे रूल मैं बताता हूं. पहले काटायन का नाम होना चाहिए, उसके बाद आनायन का नेम होना चाहिए. ये रहा सीक्वेंस. फर्स्ट रूल, अगर काटायन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो, अगर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, जरा कॉम्प्लेक्स के अंदर में झांक के देखो, क्या देखोगे तुम, कुछ मेटल देखोगे, उसके साथ कुछ लिगैंड्स प्रेजेंट है. 4 नंबर 6 नंबर लिगैंड मान लो, L1 L2 L3 L4, 4 वैरायटी का लिगैंड्स है. उसके ऊपर में कुछ चार्जेस होंगे या बाहर में कुछ काउंटर आयंस होंगे. यही है ना. तो देखो, ये रहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स काटायन. देखो काटायन कितना बड़ा फैमिली बनाया है, अपना खुद का कितना बड़ा फैमिली बनाया, वो कॉम्प्लेक्स काटायन.
पहले कॉम्प्लेक्स काटायन का तो नाम तो पहले करेंगे, नामकरण पहले काटायन का ही होगा, वो चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये तो रूल है, ये तो यूनिवर्सल रूल है। लेकिन अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं, सिंपल है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात तब बनेगी जब वो कॉम्प्लेक्स होगी। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाओगे तो क्या देखोगे, क्या देखोगे, लिगैंड्स। ठीक है, पहले लिगैंड्स का नेमिंग करेंगे, उसके बाद मेटल, पहले लिगैंड उसके बाद मेटल। ठीक है, ओके। So let us start discussing the art of learning the nomenclature. नामकरण कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं, ताकि इससे ये जो नोमेनक्लेचर में क्वेश्चंस जबरदस्त आने वाला है अगली एग्जाम में। CHSE हो, CBSE हो, ICSE हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो सीखते हैं। देखो, मैंने अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारा आयनिक भी हो सकते हैं, नॉन आयनिक भी हो सकते हैं। देखो, आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस आयनिक भी हो सकते हैं, आयोनिक भी हो सकते हैं, और नॉन आयोनिक हो सकते हैं। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन ओनली वन वर्ड नेम, वन वर्ड नेम, कोई अलग नहीं है, एक ही नाम, एक ही नाम है बस। लेकिन आयनिक की बात है, आयनिक देखो, आयनिक तुम्हारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स काटायन, कॉम्प्लेक्स काटायन प्लस सिंपल आनायन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिंपल काटायन, सिंपल काटायन प्लस कॉम्प्लेक्स आनायन, और थर्ड बोथ आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स काटायन, काटायन भी कॉम्प्लेक्स और आनायन भी कॉम्प्लेक्स। ठीक, सो पहले लेट अस discuss how to do the nomenclature of ionic complexes. Ionic complexes. Ionic complex means there must be a cation, there must be a cation, then anion. So first cation is named. Cation is named first, then anion. जैसे कहा सोडियम क्लोराइड, कभी क्लोरीन सोडियम नहीं होगा, या क्लोराइड सोडियम कभी हम नहीं कहेंगे। तो cation ये रहा, आनायन ये यूनिवर्सल रूल है। देखो, अगर काटायन कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है तो कोई बात नहीं, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहले तो काटायन का ही नेमिंग होगा। सो वी हैव टू फर्स्ट डू द नेमिंग ऑफ अ काटायन, वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, मेक्स नो डिफरेंस। सो देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में यू विल सी सम मेटल, सपोज इट हैज 4 लिगैंड्स, L1, L2, L3, L4, ऐसे ही कुछ होगा। मेटल के साथ कुछ लिगैंड्स लगे होंगे और बाहर में कुछ आनायंस पड़े होंगे, जिसको हम काउंटर आयंस कहते हैं। तो कैसे हम नेमिंग करेंगे, तो ये तो पहला, ये तो रहा काटायन N+, सपोज ये N-, ये तो काटायन, पहले तो उसका नेमिंग होगा। तो कैसे करेंगे, सो फर्स्ट इज देखो सीक्वेंस, सीक्वेंस लिगैंड्स, पहले लिगैंड्स का नेमिंग करेंगे, लिगैंड्स का नेमिंग पहले होगा, उसके बाद सेंट्रल एटम, काटायन हो या एटम हो, उसके साथ साथ उसके बगल में जस्ट नियरेस्ट टू इट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमेरल I, II, भी, ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर को हम लिखेंगे जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल। उसके बाद आनायन, ये रहा सीक्वेंस। इफ मेटल इज, if your cation is complex, if your anion is complex, then first cation, simple cation, no problem, then complex anion, ये रहा नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाओगे तो
वही देखोगे लिगांड्स, लिगांड्स का नेमिंग पहले करेंगे, चाहे वो कैटायन के अंदर में हो या आनायन के अंदर में हो, लिगांड्स का नेमिंग तो पहले होगा। उसके बाद सेंट्रल एटम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एटम का नेम लैटिन नेम से होना चाहिए, लैटिन नेम से होना चाहिए। उसके बाद ATE सफिक्स जोड़ दो, लैटिन नेम। अगर ये आनायन पार्ट में है, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर वो कॉम्प्लेक्स आनायन हो तब मेटल की जो नाम है वो लैटिन नेम लिखना। आयरन अगर है, फेरेट, फेरम, क्यूप्रम, अर्जेंटम, ऐसे ही लिखना उसका नाम, उसके नाम के आगे AT जोड़ देना और तुरंत बाद ऑक्सीडेशन नंबर, बस इतना ही याद रखना। और दोनों कॉम्प्लेक्स है तो कोई बात नहीं, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है कैटायन की जगह में वही रहेगा, लिगांड, सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट, आनायन, आनायन तो ये रहा कॉम्प्लेक्स कैटायन के पार्ट में, ये रह जाए, आनायन को छोड़ दो, आनायन तो कॉम्प्लेक्स आनायन है, तो पहले लिगांड, सेंट्रल एटम, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आनायन अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर आ जाना लिगांड्स, सेंट्रल एटम, उसके लैटिन नेम से AT जोड़ देना, बस उसके पीछे तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना। बस यही रहा तुम्हारा तरीका, बस ये रहा सीक्वेंस, उसको कभी भूलना नहीं। और जो नॉन एनिक है, ना उसका कोई आगे है ना कोई पीछे है, सिंपल वर्ड नेम, वन वर्ड नेम, ठीक है। और यहाँ एक बात है, जो लिगेंड्स हम लिखेंगे, अगर एक ही टाइप का लिगेंड है, इफ यू वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, देन कैसे लिखेंगे? लिगेंड का जो नेम है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उसको हम लिखेंगे। जो लिगेंड का नाम का जो स्टार्टिंग लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, ना कि उसके नंबर से, नाम से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हिसाब से पहले नेमिंग करेंगे, ठीक है। और अगर वो लिगेंड if they are present in 2, 3 or more numbers, then use a prefix di, tri, tetra, etc. If these ligands are present in 2, 3 or 4 numbers. Remember, if organic ligands are present, organic ligands, if 2 organic ligands are present, you cannot write it di, you have to write it bis with a hyphen, BC hyphen, and that organic ligand must be enclosed in a parenthesis. This is the difference. याद रहा ना। और इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी लिखो। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड आ गया तो डाई मत लिखना, अगर दो लिगेंड से 20 लिखना, और 20 ही तुरंत बाद एक हाइफन देना और पैरेंथेसिस में उसी लिगेंड को डाल देना। ये डिफरेंस याद रखना। और 3 ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड्स होंगे तो क्या लिखोगे? ट्रीस, 20 ट्रीस। अगर 4 है टेट्राकीस, सिंगल एस, डबल एस नहीं, मार खाओगे। सो टेट्राकीस मीन्स देयर आर 4 सिमिलर ऑर्गेनिक लिगेंड्स आर प्रेजेंट। बस इतना ही तरीका है, इतना ही टेक्निक, इतना ही याद रखो। और अब मैं बताने जा रहा हूं लिगेंड का नाम कैसे याद रखोगे। मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूं, पहले देख लीजिए। पहले कैटायन का नाम, उसके बाद आनायन का नाम। अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नाम, और उसके बगल में डाल दो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल से। अगर वो आनायन में है तो पहले सिंपल कैटायन का नाम लिखो, और उसके बाद लिगेंड का नाम लिखो, मेटल का नाम लैटिन नेम से लिखो, AT जोड़ो, उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हारा नाम कि मेरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं जो कैपिटल से शुरू होगा, बीच में गैप रहेगा, नो गैप, नो कैपिटल लेटर, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से अंत तक सारी की सारी लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए, कहीं पे कॉमा, हाइफन, एक कुछ नहीं, ठीक है। बस इतने चीज ध्यान में रखो। आइए लिगेंड के नाम कैसे लिखेंगे। देखो, लिगेंड तुम्हारा 3 तरह के हो सकते हैं।
न्यूट्रल लिगेंड्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड्स देखो, वाटर बड़ी जबरदस्त लिगेंड है वाटर, कभी वाटर नहीं लिखना, अक्वा, अक्वा नाम सुना होगा, अक्वारियम, अक्वागार्ड, अक्वाफिना, अक्वा लिखना, याद रहा ना, मजा आ रहा है ना। अमोनिया अगर है, आमीन, आमीन, अमोनिया कभी मत नहीं लिखना, कभी मत लिखना, आमीन। अगर एनओ हो, एनओ, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो जब उसको हम लिगेंड कहेंगे, जब लिगेंड होगा वो, उसको हम कहेंगे कार्बोनिल, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज, एक ही साइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरा साइड तो डोनर एटम है, तो हाइड्रोजनियम आयन, NH2 NH3 प्लस, हाइड्रोजनियम आयन, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, N के ऊपर प्लस है, वो तो है ना, वो भी लोन पेयर दे सकता है, NO प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन। ये रहा तुम्हारा न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की कैसे हम नेमिंग करेंगे। आइए सीखते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, जो लिगेंड ज्यादा नंबर में हो, ज्यादातर लिगेंड्स 90% लिगेंड्स मान लो तो इसी कैटेगरी में आते हैं, नेगेटिवली चार्ज आनायंस। व्हेन दे आर यूज्ड एज लिगेंड्स, व्हेन द आनायंस आर यूज्ड एज लिगेंड्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं। देखो, अगर आपको मालूम है इसका नाम क्या है, अगर उसको आपको मालूम है इसका नाम क्या है, बस काम हो गया। क्लोराइड Cl माइनस, क्लोराइड, बस आपको आनायन का नाम और एसिड रेडिकल का नाम याद आना चाहिए, उसको रटा मारो या कुछ भी करो, याद रखो यार। अगर वो याद नहीं रहा तो बस कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो जो आनायन है, मान देखो, जिस आनायन का नाम से एंडिंग, जिस आनायन का नाम एंडिंग हो रहा है, बार बार कह रहा हूं, IDE, IDE, जिस आनायन का नाम ई से एंडिंग हो रहा है, ई को हटा दो, ओ जोड़ दो, रिमूव ई फ्रॉम इट्स नेम, आड ओ डाल दो। जैसे एक बात बता रहा हूं, क्लोराइडी, क्लोराइडी क्या होगा, व्हेन इट इज यूज्ड एज लिगेंड, ई को हटा दो, ओ जोड़ दो, क्लोरिडो, कभी मत कहना क्लोरो, ये पुराने जमाने की बात है, आजकल नहीं चलेगा। हम चला लेंगे, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर क्या सोचेगा। क्लोरिडो, फ्लोराइड अगर है तो फ्लोरिडो, ई हटा दो, ओ जोड़ दो। ब्रोमाइडी, ब्रोमिडो, सियानाइडी, सियानिडो, ओ डो, अमाइडी, आमिडो। हाइड्राइडी, H माइनस, हाइड्रिडो, हाइड्रो मत कहना, हाइड्रिडो। सल्फेट, सल्फेट, ATE, ठीक से स्पेलिंग लिखना, ACULPHATE, ई हटा दो, ओ जोड़ दो, सल्फाटो। ऑक्जालेट, ऑक्जालाटो। कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, कार्बोनाटो, सब नाटो, फटो, बस ऐसे ही चलता रहेगा। एसीटेट, मजा आ रहा है ना, एसीटेट, एसीटाटो, CH3CO माइनस, एसीटाटो, लिगेंड, बस ई हटा दो, ओ जोड़ दो, बस काम खत्म। सल्फाइडी, सल्फाइडी, IDE, ई हटाओ, ओ जोड़ो, सल्फिडो। आजाइडी, N3 माइनस, आजाइडी, ई हटाओ, ओ जोड़ो, आजीडो। इमाइडी, इमिडो, बस हो गया। और कुछ मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एम्बिडेंट लिगेंड है वही आपको परेशान करने वाला है, जो एम्बिडेंट लिगेंड है वही परेशान करने वाला है। चलिए उसको थोड़ा सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। अगर तुम्हारा ये दिया नाइट्रो NO2 माइनस, अगर मेटल के साथ देखो N से लगा हुआ है, इफ N इट इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू N, उसका नाम लिखना नाइट्रिटो, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, ठीक है। अगर ये ONO M, देखो 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 देखो, ONO से जुड़ा है तो उसको कहना नाइट्रिटो, वही नाइट्रिटो O, ठीक है। उसी तरह थायोसियानाइडी, थायोसियानेट, थायोसियान
N minus, अगर M is connected through SCN, then उसको कहना thiocyanatoase, thiocyanatoase। सिमिलरली अगर N के एंड से वो कनेक्ट हुआ है तो उसको कहना thiocyanatoN। बस इतना ही याद रखना। ऑक्साइड ऑक्सीडो भी कह सकते हो, ऑक्सो भी कह सकते हो, बस ऑक्सो भी कह सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं। पेरोक्साइड को पेरोक्सीडो भी कह सकते हैं, पेरोक्सो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रहा रूल। आइए कुछ नोमेनक्लेचर सीखते हैं, मैं बताता हूं, आप देखिए और मेरे साथ भी मिलके आपकी कॉपी पर भी करते जाइए, करते जाइए। देखो गजब का चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, K4 FeCN होल 6 कैसे करोगे। रहा कैटायन, पहला वाला कैटायन, दूसरा वाला हमेशा अनायन, पहला वाला कैटायन, दूसरा वाला अनायन। क्या होगा, पोटासियम, पोटासियम स्मॉल लेटर से पोटासियम, हेक्सासियानिडो, हेक्सासियानाइड, सियानिडो, हेक्सासियानिडो, ये अनायन के पार्ट में है तो उसका लैटिन नेम होगा फेरेट, फेरेट, फेरम से फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर हिसाब करो, 4 + x - 6 = 0 + 2। ओके, चलिए फटाफट फटाफट सीखते हैं कुछ और नोमेनक्लेचर, और कुछ नोमेनक्लेचर सीखते जाइए। K2 मान लो ये रहा तुम्हारा Cr CO CN होल 5। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा। पहले कैटायन, पहले कैटायन पोटासियम, 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 बोलो क्या होगा। उसके बाद ये रहा सियानाइड, सियानिडो, और रहा कार्बोनिल, कार्बोनिल पहले आएगा, कार्बोनिल C और ये भी C, कार्बोनिल कम्स फर्स्ट, पोटासियम कार्बोनिल, कार्बोनिल पेंटा सियानिडो। आई बात समझ में, सियानाइड सियानिडो। बाकी हिसाब करो तुम्हारा, ये रहा क्रोमियम, क्रोमेट, क्रोमियम से बनेगा क्रोमेट बिकॉज इट इज इन अनायन पार्ट, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दो और हिसाब करो। देयर आर 2 + x, ये था न्यूट्रल, 0 - 5 = 0, सो x = +3 मीन्स 3। मैं और कुछ कर देता हूं, बाकी सब घर में आपके पास जो भी किताब है, बीके केमिस्ट्री किताब है, और आप चाहते हो तो उसके उड़िया में अगर जानना चाहते हो तो मेरा भी चैनल है बीके केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, आप भी उसको रेफर भी कर सकते हो उसी किताब से भी। और कोई भी किताब हो, आपका टेक्स्ट बुक ब्यूरो भी हो, एनसीईआरटी हो, उससे भी आप कर सकते हो। मैं कुछ कर देता हूं, देखो K2 PT Cl6, Cl6 कैसे होगा, उसका नाम कैसे होगा। देखो देखो, पोटासियम, वही पोटासियम, पोटासियम हेक्सा क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो, प्लाटिनेट, प्लाटिनेट, प्लाटिनेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 + x - 6 = 0, तो I भी हो गया। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर आप तो सारे के सारे एक ही सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स आनायन वाले कर रहे हैं, तो कुछ कॉम्प्लेक्स आनायन वाले कीजिए ना। तो देखो CONH3 होल 6 ब्रैकेट बाहर में Cl3 पड़ा है, देखो 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 कैसे होगा। ये रहा कॉम्प्लेक्स कैटायन, पहले ब्रैकेट वाले, पहले वाला कैटायन, दूसरे वाला आनायन, क्या होगा, कैटायन होगा। देखो ये एक ही होमोलेप्टिक है, हेक्सा आमीन, हेक्सा आमीन। देखो देयर इज नो गैप, स्मॉल लेटर, शुरू से स्मॉल लेटर, अंत में भी स्मॉल लेटर है, हेक्सा आमीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ही मेटल लिखोगे साइड बाय साइड उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, X + अमोनिया जी न्यूट्रल मोलेकुल 0 -3, एक ही क्लोराइड का -1 = 0, सो ये रहा 3। ठीक है, और देखो CuNH3 होल 4 SO4 क्या होगा बताओ। ऐसे ही टेट्रामीन, टेट्रामीन, टेट्रामीन कॉपर, कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दो और लिख दो सल्फेट, बाद में इसको हिसाब करो। X + 0 - 2 = 0,
so oxidation will equal 0. Similarly Pt, देखो Pt NH3 whole 4 Pt Cl4, ये रहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स आनायन, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे लिखेंगे? देखो ये पहले तो कटायन आएगा क्या? टेट्रामीन प्लैटिनम, कोई परेशानी नहीं है यहाँ। प्लैटिनम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दो। और ये रहा आनायन पार्ट, पहले उसी तरह पहले आनायन लिखना टेट्राक्लोरिडो platinate because it comes in anionic part. What will the oxidation number? वही तो बात है। गलतियां तो यहीं पे होती है, यहीं पे तो गलतियां होती है। कैसे करें? देखो उसको डिवाइड कर दो, ये रहा +2, ये रहा -2, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, उसको +2 कर दो, उसको -2 कर दो, बस काम खत्म। सिंपल तरीका। देखो ये रहा x + 0 = +2, इसका अलग से निकालो, इसका भी अलग से निकालो ही। इसका क्या होगा? x - 4 = -2, so x = +2, ये भी हो गया +2, सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो गया, काम खत्म, बात बन गया। आ रहा है मजा आ रहा है ना? और एक बता रहा हूँ, देखो गजब का चीज है। NiEN3 Cl2, कैसे करोगे? ऑर्गेनिक लिगैंड वाली बात यहाँ पे आ गई, बताओ कैसे करेंगे? ये देखो, ये रहा ऑर्गेनिक लिगैंड, मैंने अभी बताया, इसका नंबर है 3। ट्राई मत लिखना, क्या लिखोगे? ट्रीस। क्या लिखोगे? ट्रीस। देखो ट्रीस स्मॉल लेटर, कभी कैपिटल लेटर, मर जाना, लेकिन कभी ये गलती मत करना, कभी कैपिटल लेटर मत लिखना। ट्रीस और हाइफन दे देना, इसका नाम को पैरेंथेसिस में लिख देना। क्या है? इथिलीन डाइअमीन, बस काम खत्म हो गया। ट्रीस इथिलीन डाइअमीन, ये तो कैटायन के पार्ट में है, कोई बात नहीं। निकेल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दो, और बाहर में जो काउंटर आयन पड़ा है क्लोराइड, उसका नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है, वो 2 हो या 3 हो, सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पैदा हुए हैं। उनका नंबर छोड़ो, गोली मारो, नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड लिख दो। देखो क्या हो ऑक्सीडेशन नंबर? x + 0 - 2 = 0, सो x बन गया तुम्हारा 2। ठीक है? और देखो, और कुछ दिलचस्प एग्जाम्पल मैंने यहां भी तुम्हारा स्लाइड में दिया, अभी घर में भी देख सकते हो। मैं और 1-2 कर देता हूं, आप लोगों के लिए कर देता हूं। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। बताओ, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। आप बताओ कि सर इसमें तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे लिथियम है, एल्यूमिनियम भी है, आलू भी है, और हाइड्रोजन भी है। तो कैसे लिखोगे? वही है, लिथियम तो पहला वाला काटायन हो गया, ये तो आनायन होगा। तो क्या होगा? लिथियम पहले काटायन, उसके बाद आनायन के पार्ट। आनायन तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो आनायन कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन छोटा सा पसंद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, ये तगड़ा लिगैंड है। तो देखो हाइड्राइड क्या होगा? टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, लिथियम 1 + x - 4 = 0, एल्यूमिनेट 3। उसी तरह कहना सोडियम बोरो हाइड्राइड, इट इज ऑल्सो अनदर रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच सिलेक्टिवली रिड्यूसेस योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पढ़े होंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। तो क्या है उसका भाई नाम आईपीएस सिस्टम में?
देखो देखो सोडियम सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरन का नाम क्या होगा यहाँ पे? बोरेट, बिकॉज इट इज अनायन पार्ट। अनायन पार्ट में है तो AT लगना चाहिए और जबरदस्त भी लगेगा। 3 ऑक्सीडेशन में देखो देखो X प्लस ये रहा Na का 1 प्लस X माइनस 4 इक्वल 0, वही कहानी है। और एक कर देता हूँ Na3Al जिसको कहते हैं वो क्रायोलाइट, क्रायोलाइट और Na2Si बस देखो इसका नाम क्या होगा? सोडियम सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो 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 एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ बताओ। 3 प्लस X माइनस 6 इक्वल टू 0, 3। और ये भी क्या होगा? सोडियम सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो फ्लोरिडो सिलिकेट सिलिकेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखो 2 प्लस X माइनस 6 इक्वल टू 0, तो सिलिकेट आई भी। ये रहा तुम्हारा कुछ नोमेनक्लेचर्स, कुछ नोमेनक्लेचर्स, सारी नोमेनक्लेचर्स नहीं है, ठीक है। तो देख लेना और आराम से घर में बैठ के करना, कोई परेशानी नहीं होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों की दिलो दिमाग पर जरूर छाए होंगे। और आई एम श्योर जो भी whatever questions are likely to come in the examination, you will have absolutely no problem in solving. Okay, thank you for attending the class and I wish you all the best. Good luck.